جب میری عمر صرف 18 سال تھی تو میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میرے چچا نے سب کے سامنے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں گے، مگر والد کے 40ویں کے چند دن بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ ایک مفت کی نوکرانی بن چکی ہوں۔ میں دن بھر کام کرتی تھی اور رات کو چھت پر بیٹھ کر روتی تھی، مگر ایک دن الماری سے مجھے میرے باپ کی ڈائری ملی۔ اس پر جو لکھا تھا پڑھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام مریم ہے، اور اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ انسان کو سب سے زیادہ کیا چیز مضبوط بناتی ہے تو میں کہوں گی مصیبت، کیونکہ جو انسان دکھوں کے سمندر سے گزر جاتا ہے وہ پھر چھوٹی تکلیفوں سے نہیں ڈرتا۔ میرا بچپن بہت عام تھا۔ میرے والد ایک اسکول میں استاد تھے اور ہم امیر نہیں تھے مگر خوش تھے۔ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے، مریم، انسان کی اصل دولت اس کا کردار ہوتا ہے، پیسہ آج ہے کل نہیں۔ اس وقت مجھے ان کی باتیں عام سی لگتی تھیں۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ میرے والد اچانک دل کے دورے سے انتقال کر گئے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی رو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو۔ والد کے جانے کے بعد گھر کے حالات تیزی سے خراب ہونے لگے۔ ہمارے پاس زیادہ بچت نہیں تھی۔ امی پہلے ہی بیمار رہتی تھیں، اس لیے چچا نے مشورہ دیا کہ ہم ان کے گھر منتقل ہو جائیں۔ شروع میں مجھے لگا واقعی وہ ہمارا سہارا بن رہے ہیں، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ چند ہفتوں بعد ہی چچی کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ صبح فجر سے پہلے مجھے جگا دیتی، پورا گھر صاف کرو، ناشتہ بناؤ، بچوں کے کپڑے دیوا، بازار جاؤ، اور اگر کسی کام میں چند منٹ کی دیر ہو جاتی تو گھنٹوں تانے سننے پڑتے۔ میں خاموش رہتی کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ امی اپنی بیماری کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتی تھیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں مزید دکھ ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ میری تمام سہیلیاں کالج جا رہی تھیں، اپنے خواب پورے کر رہی تھیں، اور میں دوسروں کے برتن دھو رہی تھی۔ کبھی کبھی رات کو آئینے میں خود کو دیکھتی تو لگتا جیسے میں اپنی عمر سے 10 سال بڑی ہو چکی ہوں۔ پھر ایک دن چچی نے وہ بات کہی جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ انہوں نے کہا، تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا، اس لیے احسان مانو کہ ہم تمہیں کھانا دے رہے ہیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی اور پہلی بار اپنے والد کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر بہت روئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو کبھی مجھے اس حال میں نہ دیکھتے۔ مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے والد میرے لیے ایسی چیز چھوڑ گئے تھے جس کے بارے میں اس گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھا، اور اسی راز کی وجہ سے میری زندگی ایک دن مکمل طور پر بدلنے والی تھی۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ امی سو چکی تھی مگر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ چچی کی باتیں بار بار میرے ذہن میں گونج رہی تھیں کہ تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ میں جانتی تھی کہ ہمارے حالات اچھے نہیں تھے، مگر میں اپنے والد کو بھی جانتی تھی۔ وہ بہت دور اندیش انسان تھے، وہ ہمیشہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتے تھے، اس لیے نہ جانے کیوں میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے۔ اگلے دن صفائی کرتے ہوئے مجھے گھر کے پرانے سامان میں والد کا ایک لکڑی کا بکس ملا جو برسوں سے کسی نے نہیں کھولا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ بکس کھولا تو اندر والد کی چند کتابیں، کچھ پرانی تصویریں اور ایک موٹی سی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ڈائری کھولی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ ہر صفحے پر والد کی لکھائی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بات کر رہے ہوں۔ میں گھنٹوں وہ ڈائری پڑھتی رہی۔ اس میں میرے بچپن کے واقعات تھے، میری پہلی اسکول کی تصویر تھی، میرے بارے میں ان کے خواب تھے۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا تھا، میری مریم بہت بہادر ہے، مجھے یقین ہے اگر کبھی میں اس دنیا میں نہ رہا تو بھی وہ ہار نہیں مانے گی۔ یہ پڑھ کر میں زار و قطار رونے لگی۔ پھر اچانک ڈائری کے آخری صفحات میں ایک عجیب جملہ نظر آیا، اگر کبھی تم خود کو اکیلا محسوس کرو تو پرانے برگد کے درخت کے پاس جانا، وہاں تمہیں میرا آخری تحفہ ملے گا۔ میں حیران رہ گئی۔ پرانا برگد کا درخت؟ مجھے فوراً یاد آیا کہ گاؤں کے کنارے ایک بہت پرانا برگد تھا جہاں والد اکثر مجھے بچپن میں لے جایا کرتے تھے۔ میں پوری رات اسی سوچ میں رہی۔ اگلی صبح موقع ملتے ہی میں وہاں چلی گئی۔ درخت اب بھی وہی موجود تھا، پرانا، خاموش اور بہت بڑا۔ میں کافی دیر اس کے ارد گرد گھومتی رہی مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر اچانک میری نظر تنے کے ایک حصے پر پڑی جہاں لکڑی میں کچھ الفاظ کھدے ہوئے تھے۔ وہ والد کی لکھائی تھی۔
मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने करीब जाकर देखा। वहां एक निशान बना हुआ था और नीचे लिखा था, दूसरा इशारा मस्जिद के पीछे है। अब मेरी हैरत और बढ़ गई। मैं फौरन पुरानी मस्जिद के पीछे पहुंची। काफी तलाश के बाद एक पत्थर के नीचे प्लास्टिक में लिपटा हुआ लिफाफा मिला। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक खत था। खत वालिद ने मेरे नाम लिखा था। बेटी, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मगर याद रखना, दुनिया में सब लोग वैसे नहीं होते जैसे नजर आते हैं। मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कुछ इंतजाम किया था, मगर मुझे डर था कि मेरी वफात के बाद कुछ लोग तुम्हें इससे दूर रखने की कोशिश करेंगे। ये पढ़कर मेरी सांस रुकने लगी। खत में आगे एक नाम और एक पता लिखा हुआ था, और साथ ये जुमला, इस शख्स पर भरोसा करना, ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। मैं कई लम्हे वो खत हाथ में लिए खड़ी रही। मेरे जहन में हजारों सवाल थे। वालिद का दोस्त कौन था, और उन्होंने मेरे लिए क्या इंतजाम किया था? मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि जब मैं इस पते पर पहुंचूंगी तो मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि वहां मौजूद शख्स मेरे वालिद के बारे में एक ऐसी हकीकत बताने वाला था जिसे सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल जाएगी। मैंने वो खत अपने दोपट्टे में छुपा लिया और पूरा दिन बेचैनी में गुजारा। चची की आवाजें कानों में पड़ रही थीं, मगर मेरा जहन कहीं और था। बार बार वही पता मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अगली सुबह मैंने चची से कहा कि उम्मी की दवा लेने जा रही हूं, और घर से निकल गई। वो पता शहर के एक पुराने इलाके का था। मैं कई गलियां उबूर करती हुई आखिर एक छोटे से दफ्तर के सामने जा पहुंची। दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, नासिर अहमद एडवोकेट। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग बैठे थे। मैंने जैसे ही अपना नाम बताया, उनकी आंखें भर आईं। वो फौरन खड़े हो गए और बोले, तुम मरियम हो, उस्ताद सलीम की बेटी? मैं हैरान रह गई। मेरे वालिद का नाम सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। नासिर साहिब ने मुझे बिठाया और काफी देर तक खामोश बैठे रहे, जैसे माजी की किसी याद में खो गए हों। फिर उन्होंने दराज से एक फाइल निकाली और आहिस्ता से बोले, तुम्हारे वालिद को अपनी मौत से कुछ अरसा पहले एक बात का अंदाजा हो गया था। मैं फौरन चौंक गई। उन्होंने कहा, उन्हें मालूम हो गया था कि उनके अपने ही कुछ लोग उनकी जायदाद पर नजर रखे हुए हैं। मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि हमारे खानदान में जायदाद नाम की कोई बड़ी चीज नहीं थी। कम अज कम मैं यही समझती थी। नासिर साहिब ने फाइल खोली और मेरे सामने कुछ कागजात रख दिए। मैंने जैसे ही वो कागजात देखे, मेरी सांस रुक गई। वो जमीन के कागजात थे, कई एकड़ जरी जमीन, और उसके मालिक के खाने में मेरे वालिद का नाम लिखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हैरत से कहा, यह कैसे मुमकिन है? नासिर साहिब हल्का सा मुस्कराए और बोले, तुम्हारे वालिद ने सालों पहले एक बंजर जमीन खरीदी थी। लोग उन पर हंसते थे, मगर चंद साल बाद वहां नई सड़क बन गई और इस जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई। मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। फिर नासिर साहिब ने वो बात बताई जिसने मेरे रूंटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे वालिद ने अपनी वफात से चंद माह पहले वसीयत तैयार करवाई थी और इसमें यह सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी थी। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैं कुर्सी पर बैठी रह गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे वालिद वाकई मेरे मुस्तकबिल की फिक्र करके गए थे। मगर अगले ही लम्हे नासिर साहिब का चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने कहा, मगर एक मसला है। मेरा दिल फिर धड़कने लगा। वो बोले, तुम्हारे चचा को भी इस जमीन का पता चल गया था, और उन्होंने तुम्हारे वालिद की वफात के फौरन बाद जाली कागजात बनवाकर जमीन अपने नाम कराने की कोशिश शुरू कर दी। मेरी मुट्ठी बंद हो गई। मुझे पहली बार समझ आया कि चची और चचा का रवैया इतना बदल क्यों गया था। वो मुझे सहारा नहीं दे रहे थे, वो मुझे काबू में रख रहे थे, ताकि मैं कभी सच तक ना पहुंच सकूं। नासिर साहिब ने कहा, अभी तक जमीन कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम है, मगर अगर तुमने जल्दी कदम ना उठाया तो वो लोग कामयाब हो सकते हैं। मैं खामोश बैठी रही। मेरा दिल गुस्से, दर्द और हैरत से भर चुका था। जब मैं दफ्तर से बाहर निकली तो मुझे लग रहा था जैसे मैं वो मरियम नहीं रही जो चंद दिन पहले तक दूसरों के रहम और करम पर जिंदा थी। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि घर वापस पहुंचते ही मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक मरहला शुरू होने वाला है। क्योंकि जब मैं शाम को घर पहुंची तो चचा दरवाजे पर खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे, और उनके हाथ में वही खत था जो मैंने वालिद की डायरी से निकाला था। मेरे जिस्म से जैसे खून खुश्क हो गया, क्योंकि अब उन्हें भी मालूम हो चुका था कि मुझे सच का पता चल गया है।
चचा के हाथ में वो खत देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं समझ गई थी कि अब कुछ न कुछ जरूर बदलने वाला है, क्योंकि जिस राज को बरसों छुपाया गया था वो अब दोनों तरफ खिल चुका था। चचा चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, कहाँ से आ रही हो? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और जवाब दिया, उम्मी की दवा लेने गई थी। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ खत मेरी तरफ उठाया और बोले, और ये दवा लेने का पर्ची है। मेरा गला खुश्क हो गया। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। चची भी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। चचा ने सख्त लहजे में कहा, अंदर आओ। मैं खामोशी से अंदर चली गई। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही उन्होंने खत मेज पर फेंक दिया और बोले, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया? मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, जी। कमरे में खामोशी छा गई। फिर अचानक चची बोल उठी, इतना एहसान किया हमने और बदले में यही मिला। मेरे अंदर बरसों का दर्द जमा था। मैंने पहली बार जवाब दिया, एहसान? कौन सा एहसान? सुबह से रात तक काम करवाना एहसान था। हर वक्त ताने देना एहसान था। मेरे मरहूम वालिद के बारे में बुरी बातें करना एहसान था। चची खामोश हो गईं। शायद उन्हें तवक्को नहीं थी कि मैं कभी जवाब भी दूंगी। चचा की पेशानी पर बिल पड़ गए। वो बोले, देखो मरियम, दुनिया इतनी आसान नहीं होती। तुम अभी बच्ची हो, ये जमीन जायदाद के मामलात तुम नहीं समझ सकती। मैं समझ गई थी कि वो मुझे फिर से कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने साफ कहा, ये जमीन मेरे वालिद ने मेरे नाम की थी और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। चचा का चेहरा सुर्ख हो गया। वो पहली बार गुस्से में चीखे। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने जवाब दिया, इस रात घर का माहौल अगर जरूरत पड़ी तो जरूर। चची मुसलसल बड़बड़ाती रहे। चचा बार बार फोन पर किसी से बात करते रहे और मैं अपनी बीमार मां के पास बैठी रही। उम्मी ने मेरी आंखों में आंसू देख लिए। उन्होंने कमजोर हाथ मेरे सर पर रखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ है बेटी? मैं मजीद खुद को ना रोक सकी और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उम्मी खामोशी से सुनती रहे। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे वालिद हमेशा कहते थे मेरी मरियम एक दिन मजबूत औरत बनेगी। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में हिम्मत पैदा हुई। अगले दिन मैं नासिर साहिब के दफ्तर गई और हमने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। चचा को जब इस बात का पता चला तो वो और ज्यादा गुस्से में आ गए, मगर अब मैं पहले वाली मरियम नहीं थी। मैं डरने के बजाय हर कदम सोच समझकर उठा रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अदालत में समाअत शुरू हुई। नासिर साहिब ने असल दस्तावेजात पेश कर दें, जबकि चचा के कागजात की जांच हुई तो साबित हो गया कि वो जाली थे। अदालत में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। चचा के चेहरे का रंग उड़ चुका था और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि सच वाकई ताकतवर होता है। मगर असल फैसला अभी बाकी था, क्योंकि जज ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी। और इसी रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी और उम्मी की जान खतरे में डाल दी और मुझे एहसास हो गया कि कुछ लोग दौलत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अदालत से वापसी के बाद मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि सच सामने आ चुका है और ऐसे लोग जो बरसों से झूठ के सहारे जिंदा रहे हों वो आसानी से हार नहीं मानते। इस रात उम्मी जल्दी सो गई, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात काफी गुजर चुकी थी जब अचानक सहन से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैं चौंक कर उठ बैठी। पहले तो मुझे लगा शायद कोई बली हो, मगर फिर खिड़की के पास किसी साए की हरकत नजर आई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरन दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उम्मी को जगाया। इसी दौरान बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ लम्हों बाद खिड़की का शीशा जोर से टूटा। उम्मी खौफ से कांपने लगे। मैंने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला था। चंद मिनट बाद बाहर से गाड़ियों की आवाजें आने लगे। साए गायब हो गए और पुलिस पूरे घर की तलाशी लेने लगी। अगली सुबह पता चला कि रात को घर में घुसने की कोशिश करने वाले 2 आदमी पकड़े गए और तफ्तीश में उन्होंने जो नाम लिया इसे सुनकर मुझे हैरत नहीं हुई। वो मेरे चचा का नाम था। इस दिन मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि जिन लोगों को मैं अपना सहारा समझती रही वही मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले। चंद हफ्तों बाद अदालत का आखिरी दिन आ गया।
मैं उम्मी के साथ अदालत पहुंची। मेरे हाथ ठंडे थे मगर दिल पहले से मजबूत था। नासिर साहिब भी हमारे साथ थे। जब फैसला सुनाया गया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अदालत ने तमाम जमीन और जायदाद कानूनी तौर पर मेरे नाम करार दे दी। जाली दस्तावेजात बनाने और धोखाधड़ी की कोशिश पर चचा के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया। मैं खामोश खड़ी रही। मेरे जहन में सिर्फ अपने वालिद का चेहरा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज वो कहीं से मुझे देख रहे हों। अदालत से बाहर निकलते ही उम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आज तुम्हारे वालिद का सर फखर से बुलंद हो गया होगा। ये सुनकर मैं रो पड़ी, मगर ये खुशी के आंसू थे। इस फैसले के बाद हमारी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। मैंने जमीन का एक हिस्सा फरोख्त किया और सबसे पहले उम्मी का मुकम्मल इलाज करवाया। कई सालों बाद उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। फिर मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की जो हालात की वजह से दरमियान में रह गई थी। मैंने एक छोटा सा तालीमी मरकज कायम किया जहां गरीब बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि महरूमी कितनी तकलीफ देती है। वक्त गुजरता गया। एक दिन मैं इसी पुराने बरगद के दरख्त के पास जाकर खड़ी हुई जहां से ये सब सफर शुरू हुआ था। हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं छोड़ी थी, उन्होंने मेरे लिए हिम्मत छोड़ी थी, एतमाद छोड़ा था और ये यकीन छोड़ा था कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। आज जब मैं अपनी जिंदगी को देखती हूं तो एक बात जरूर समझ आती है। कभी कभी इंसान को अंधेरी रातों से गुजरना पड़ता है ताकि वो सूरज की रोशनी की असल कदर जान सके। मैंने दुख भी देखे, जिल्लत भी देखी, तन्हाई भी देखी, मगर आखिरकार मैंने ये सीख लिया कि अगर इंसान सच का साथ ना छोड़े तो देर जरूर हो सकती है, मगर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। और मेरी जिंदगी इस बात की गवाह है कि अल्लाह जब देने पर आता है तो बरसों के आंसुओं का हिसाब एक मुस्कुराहट से चुका देता है।